आइए हम प्रभु के संदेश में जाएंगे। भाई फिलिप से रिक्वेस्ट करूंगा रिक्वेस्ट करो फिलिप कि एक कोरस गा दें हमारे लिए। और सचमुच में हम शत्रु की सामर्थ से बच जाते हैं। हम अपना कैमरा खोलकर गाएंगे, सब जितने लोग we'll गा all सकते हैं। sing a chorus along with Philip. माइक बंद रखिए, फिलिप भाई गाएंगे इन द Just नेम ऑफ keep the जीसस। mic closed. We'll sing in the name of Jesus. और क्योंकि मैं इसके बारे में कभी मौका लगेगा, ये गीत की कितनी सामर्थ है, एक सच्ची कहानी आपको बाद में कभी बताऊंगा, अभी नहीं। बड़ी सामर्थ मिलती है इससे। तो मेरा फिलिप भाई गाएगा और हम माइक बंद करके अपनी जगह बैठे हुए गाएंगे और हम एक बड़ी विजय देखेंगे, जो सचमुच में आज सुबह भाई ने संदेश के द्वारा हमें बताया, और इस वचन के द्वारा भी बहुतों के जीवन में बड़ी विजय प्रभु ला सके। आइए तो हम भाई फिलिप से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई गाएगा और हम अपने माइक। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. आइए हम जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय 20 से 27 तक। Shall we turn to the book of Genesis 9:20 to 27? Genesis 9:20 to 27. जी भाई। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो और वे अपने भाई बंधुओं का दास हो, के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वे शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। Noah began to, continue, Isaac. Noah, a man of soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered in his tent. Ham, the father of Canaan, saw his father naked and told to his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders. Then they walked in the backyard and covered their father's naked body. Their faces were turned so the other way, so they would not see their father naked. When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves will he be to his brothers." He also said, "Praise be to Lord, the God of Shem. May Canaan be slave of Shem. May God extend Japheth's territory. May Japheth live in tents of Shem, and may Canaan be the slave of Japheth." प्रभु जी इस वचन पे आशीष दे। Lord, bless this word. और अपने कैलवरी के किए काम से मुझे और मेरे भाइयों को बहनों को अपने लहू में छिपाएं। And hide me by the blood of the cross of Calvary and my brothers and sisters. हमारी
मनों को खोल ताकि हम आपके वचन को सुन सकें, ग्रहण सकें और चल सकें। Open our heart to hear your word, accept your word in our heart, and walk according to it. प्रभु, हम किसी आदमी के टैलेंट को नहीं बल्कि इन पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखना चाहते Dear हैं। Lord, we don't want to see any man's talent, but the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा, आप यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12 पूरा करें। Holy Spirit, fulfill Exodus 4:12, Isaiah 48:6, and Jeremiah 1:9. और प्रभु दया करके शत्रु को यीशु के नाम से बांध देते हैं हम, And bind Satan in the name of Jesus. और उसके लहू के अधीन आते हैं। Come under his blood, under your और blood. पवित्र आत्मा अपना पूरा कंट्रोल लें। Holy Spirit, take full control. प्रभु आपको स्वर्ग खुला हुआ दिखा दें आप हमें। And show us heaven opened this morning. हे प्रभु दया कर। Lord, have mercy. प्रभु कोई पाप छिपा हो तो घमंड दूर कर दे। If there's any hidden pride, sin, jealousy, remove it in the blood of Jesus. एक बार फिर तेरे लहू में अपने आप को ढांपते हैं। Once again, cover ourselves in your blood. प्रभु यीशु के नाम से मांगते In Jesus' name we pray. Amen. हैं। मैं कल कहीं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि एक डिजाइनर आदमी लाने वाले हैं बहुत जल्दी। I was hearing one thing yesterday that they are going to bring a designed man, a designed man. जैसे डिजाइनर घर होते हैं ऐसे ही एक Just as there are designer homes. हाँ, तो उसके एम्ब्रियो से, आदमी के एम्ब्रियो से कुछ छेड़छाड़ करके वो करने कुछ तैयारी कर रहे हैं। And they are making some alterations with man's embryo to do that. हाँ, तो मिस्टर विज्ञान कहता है जो कुछ हम कहते हैं वो सत्य कहते हैं। And Mr. Science says that whatever we say is true. मगर 5 साल पहले मिस्टर साइंस ने जो कहा था आज कहते हैं वो तो गलत था। But they say that what Mr. Science said 5 years back is not right today, is not true today. अरे वो सत्य था तो आज कैसे गलत हो गया? तुमने ही कहा था वो। If it was true 5 years back, how can it be wrong today? तुम अपने ही कहे को फिर अगले 5 साल में गलत ठहरा देते हो। What you say, you 5 years later, you yourself say that is false. तो सत्य है, वो कल भी सत्य रहेगा और आने वाले कल में भी सत्य रहेगा। Truth is truth. It is truth yesterday, today, and forever. मगर तुम्हारा सत्य तो हर अगले दिनों में बदलता रहता है। But your truth keeps changing all the time. सचमुच में विज्ञान बहुत बढ़ रहा है। True that science is increasing exponentially. हाँ, आदमी की बेचैनी और मुश्किलें बढ़ रही हैं। And man's problems and man's dissatisfaction is increasing also. अभी पिछले 1.5-2 सालों में तो विज्ञान ने तो बगले जगा दी। The last 1.5 years, science has truly brought us to catastrophic circumstances. करोड़ों लोग एक झटके से चले गए। Crores of people, millions of people have gone in a flash. हाँ, और आदमी ने ये सच है कि अपनी आखिरी बर्बादी में पैर रख दिए। And man has put his foot in his final destruction. हाँ, और ये जो वचन है ये अपने लोगों को बार बार अलार्म दे रहा है, अलार्म बजा रहा है कि जागते रहो हे सोने वालों। And this word is waking us up again and again. Awake you who sleep. अवेकिंग अलार्म बोलेंगे ना। It is called an alarm, to a waking alarm. हाँ, हे सोने वाले जाग। Oh, you who are asleep, awake. और वो कह रहा है कि जो श्रापित वंश है या श्रापित सीड लाइन है उससे उस लाइन से निकला, बाहर निकला। And come out of that cursed line, cursed seed line. हाँ, कितनों ने अपने सत्य की लाइन को खो दिया है। So many have lost the line of truth in their lives. हाँ, देखिए वचन जो भी है, जैसा भी है, जो भी वो दिखाता है, Whatever the word is and whatever the word shows us, हाँ वो सत्य है, is the truth, सत्य को प्रकट करता है। reveals the truth. हाँ, और वही सच्चाई को हमारे पर प्रकट करता है, हमारी सच्चाई को। Only reveals my and your truth to us. चाहे उसका दोस्त क्यों ना हो, परमेश्वर का अब्राहम,
even if it's a friend of Abraham, उसके पाप साफ दिखा देता है, reveals his sins very openly, छिपाता नहीं है। does not hide. दाऊद भले ही दिल का आदमी, उसका पाप भी नहीं छिपाता। David may be a man after God's own heart, but his sin is हाँ। not hidden. नूह जो है अनुग्रह पुत्र है क्यों ना हो, वो उसके भी पाप नहीं छिपाता। Noah might be the child of grace, but his sins are also exposed. हाँ, वो ऐसा सत्य है कि वो अपनों से भी पक्षपात नहीं करते, उनके भी पाप खोल कर रख देता है। It is such a truth that even with its own, it does not do partiality, but exposes their sins. और कोई दाग नहीं छिपाता उनका। And does not hide any fault in them. नूह जो था वो 950 साल जिया Noah lived for 950 years. और विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता, मेहनत, प्रचार और वो जीवन जिया जो सचमुच में उदाहरण का जीवन। Lived a life of faithfulness and testimony, witness and hard work, truly exemplary life. हाँ, पर अंत में अपनी गवाही पर एक काला दाग लगाकर चला गया। But in the end, he put a black spot on his testimony. और एक चूक ने उसके एक वंश को श्राप के वंश की लाइन में मतलब खड़ा कर दिया। And his one mistake made one of his seed, one of his generation, to stand in the cursed line. सीड लाइन, जो सीड लाइन थी, जो शायद, हाँ ठीक है भाई, एक शाश्वत वंश की लाइन में खड़ा कर दिया। They made one of his seed to stand in the line of curse. प्रभु ने इसका भी पाप प्रकट किया, क्योंकि प्रभु ज्योति है, वो कुछ नहीं छुपाता। The Lord revealed Noah's sin also, for the Lord hides no one's sin, he is the light. तो आज भी प्रभु मेरे और आपके छिपे हुए पाप अपने वचन की ज्योति के द्वारा प्रकट करेगा। And today also the Lord will reveal your and my sins through the light of his word. वो किसी का लिहाज नहीं करता प्रभु। He does not do any partiality. हाँ, देखिए कितना ही आदर योग हो, कितना कैसा ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं कुछ शर्मनाक काम कर जाता है। However much honorable a man might be, somewhere or another he does something shameful. हाँ, 9 और 1 में देखते हैं, इसी पर अध्याय के 9:1 We see in Genesis 9:1. उत्पत्ति 9:1, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, इस समय So God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful, multiply and fill the earth. हाँ, उसको और उसके पुत्रों को दी। पुत्र 3 थे, बड़ा शेम था, फिर हाम था और फिर यापेत था। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। शेम पहला था, बोल लीजिए अपने मुंह से, याद रहेगा। शेम पहला था, the first one. यापेत दूसरा था, then Japheth. और इसे बाद में प्रभु ने छोटा भी कहा, शायद अब इनमें फर्क हो सकता है, और फिर हाम था, and then it was Ham. हाँ, अब हम इस कहानी को इन तीनों को आशीष दे दी प्रभु। Now all 3 were blessed. ये ध्यान रखिए, तीनों को आशीष दी है। All 3 were blessed. अब एक नई पृथ्वी शुरू हुई है। Now a new earth started. और आशीष के साथ शुरू हुई है। And with a blessing. आदम से प्रभु ने एक पृथ्वी शुरू की, आशीष देकर शुरू की, एक नया संसार शुरू किया। The Lord had started a new creation with Adam, a blessed creation. हाँ, देखिए, अगर कोई सीमा नहीं है, if there is no boundary line, हाँ, तो आजादी का कोई मतलब नहीं, then freedom has no meaning. थोड़ा उलझा हुआ सेंटेंस हो सकता है, मगर ध्यान से सुनेंगे समझ आएगा। Little puzzling sentence, but here carefully you will understand. देखिए, कोई भी आजादी अगर बिना सीमा के है, तो वो आजादी हमें गुलामी में ले आएगी। If any freedom is without a boundary, it will bring us into slavery. क्योंकि फिर हम अपने मन की मानी करने लगेंगे और मन के गुलाम हो जाएंगे। Because then we'll start doing according to our heart's desire and we'll become the slaves of our heart. हाँ, फिर हमारी आजादी नहीं रहेगी, हम अपने मन के गुलाम हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? Our freedom will not be freedom, but we'll be the slaves of our own heart. हाँ, आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पढ़िएगा उत्पत्ति 9, 20 और 21।
If you read Genesis 9, 20 and 21, नूह किसानी करने लगा और दाख की बारी लगाई, और वे दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। Noah, a man of soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered in his tent. हाँ, नए संसार में फिर पाप आया। in the new world, sin came again, हाँ, और नूह नंगा हो गया। and Noah was naked. आदम में के जीवन में फिर पाप आया, वो नंगा हो गया। Adam, sin came in his life, he became naked. अब परमेश्वर का पुत्र आया, Now the Son of God came. उसने मेरे पाप लिए, वो नंगा हो गया। He took my sins upon himself and he पाप was ने आदम made को, नूह naked. को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, सबको नंगा कर दिया। Sin made Adam naked, Noah naked, and our Lord also, because of our sins, उसने became पाप naked. नहीं किया था, मेरा पाप जैसे लिया, पाप ने नंगा कर दिया। Jesus had not done any sin, but when he took my sins on himself, he became naked. Sin made him naked. हाँ, तो पाप नंगा कर देता है। Sin makes us naked. हम आगे देखेंगे इसे। We'll see this further. हाँ, संसार पाप में बढ़ रहा है, The world is growing in sin. वो नंगा हो रहा है, It is becoming naked. नंगापन देख रहा है It is seeing nakedness और नंगापन दिखा रहा है। and showing nakedness. आत्मिक तौर पर नंगा हो रहा है, शारीरिक रूप में नंगा हो रहा है। Spiritually naked, physically naked. हाँ, और दूसरों का नंगापन देखने के लिए, दिखाने के लिए शैतान ने बहुत तरीके अपना रखे। And Satan has adopted many ways to show the nakedness of others. हाँ, देखिए, नूह की संतान भी लग गई। हेलो, Noah's generation also started. शैतान देखिए दूसरों का नंगापन दिखाने के लिए हमें लगा देता है, Satan gets us involved in seeing others' nakedness. और आज शरीर में नंगापन देखने और दिखाने की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। And there is a great desire in the human form, in humans today, to see nakedness and show their nakedness. हाँ, मुझे भी अछूता नहीं छोड़ा। It has not left me untouched. देखिए, पति पत्नी नंगे थे, कोई बुराई नहीं थी, कोई पाप नहीं था। When Adam and Eve were naked, husband and wife were naked, there was no sin in that. हाँ, कोई पाप नहीं था। No sin in that. मगर जब उसे वाटिका से निकाला तो प्रभु ने कपड़े पहन के निकाला। But when the Lord cast them out of the Garden of Eden, gave them clothes to wear. हाँ, देखिए, क्या गलती कहाँ हुई, मतलब नूह से? Where did Noah make a mistake? देखिए, उसने दाख मधु पिया, दाख रस नहीं पिया। ध्यान दीजिए। He drank wine, not grape juice. हाँ, तो मैं भी इसके बारे में आपको बात करूंगा। I'll और talk about this. और उस नशे ने उसे नंगा कर दिया। And that liquor, that intoxicant, made him naked. नंगे शरीर में एक अजीब सी सामर्थ्य होती है। There's a very strange power in a naked body. आदमी जब स्त्री आदमी का नंगा, बड़ी वो अपना एक नशा होता है जिसमें वो अपना आपा खो देता है। When the man sees a woman's nakedness, a woman sees a man's nakedness, there is a strange intoxication in that. They lose control. हाँ, वो कंट्रोल खो देता है, अपने ऊपर कंट्रोल। They lose control. तो ये नंगापन पृथ्वी पर फैला हुआ है। And this nakedness is spread all over the earth. आप किसी को नहीं छोड़ा उसने। It has not spared anyone. हाँ, वो पृथ्वी पर नंगापन दिखाने के लिए, और नंगापन का तो व्यापार है, बहुत बड़ा बिजनेस है। There is a great business of nakedness across the world. और ये शौक जो है आदत बन गया है, एडिक्शन बन गया है, बहुतों के लिए बीमारी बन गया है। And this has become an addiction and a sickness in many people. हाँ, ये शैतान कर रहा है नंगा। Satan is doing that. और लोग बैठे रहते हैं और लत लग जाती है, लत लग जाती है। It then becomes an addiction. और इसी तरह हम आत्मिक रूप से दूसरों का नंगापन देखना चाहते हैं और दूसरों को नंगा करके खड़ा कर देते हैं। Similarly, we want to see each other's spiritual nakedness and want to expose other people's nakedness. हाँ,
अब ध्यान दीजिए, Now hear carefully. इसके 3 बेटे थे। 3 sons. कहीं मैं गड़बड़ा ना जाऊं, प्रभु दया करे कहीं उलझ ना जाए। इसके पहले बेटे का नाम था शेम। His first son, Shem. शेम का मतलब होता है नाम। Shem means name. क्या नाम? What name? इसके वंश में एक नाम छुपा हुआ था जिसके द्वारा उद्धार था, जिसके द्वारा छुटकारा था। In his seed was hidden a name through which there was deliverance. हाँ, हाम के वंश से जो उसकी सीड लाइन चली, उसकी वंश की लाइन चली, वो अब्राहम से थी। Ham, the seed तो line. अब्राहम भी शेत के वंश का था। But can you repeat that again? भाई, अब शेत के वंश में अब्राहम था। Abraham was in the line of Seth. और यही अब्राहम से इसाक, याकूब और चलते चलते इसराइल, और फिर यीशु मसीह, जिस वो यहोवा का नाम जो इसमें छिपा हुआ था, वो इस वंश में था। Ibrahim was also from the line of Shem, and then when this generation carried forward to Isaac and Jacob and onwards, it came to the Lord Jesus Christ. This name was hidden in the name of Shem. अच्छा, दूसरा था हाम। And the second was Ham. ये कनान का वंश जो है इससे चला। The line of Canaan came from Ham. और दूसरा हम है यापेत, जो अलग अलग मतलब लोग हैं। And then we who are Japheth, who are different peoples. हाँ, तो ये 3 लाइन बताई है उसने। So there are these 3 lines. एक तो इसराइल की लाइन जो बिल्कुल अलग चली है, बिल्कुल। One is the line of Israel that's completely separate. दूसरी कनान की, हाम की जो मसीह विरोधी की लाइन है, वो अलग है। And the second is the line of Canaan through Ham, that is the line of the Antichrist. हाँ, और तीसरी यापेत की जो हम जैसे लोग हैं, जो And the third is Japheth, that is all of us, Gentiles. अब ध्यान रखिएगा, बाद में थोड़ी देर में समझ में आने लगी। So here, remember this carefully to understand. नूह का पाप कहाँ से शुरू हुआ? Where did Noah's sin begin? हाँ, शैतान ने ये पाप कहाँ बोया उसके जीवन में? Where did Satan sow this sin in his life? देखिए, एक बात सुनिएगा। So hear carefully. ये शरीर जो है श्रापित मिट्टी से बना है, प्रभु का शरीर नहीं। मेरा शरीर This श्रापित मिट्टी से बना है। body has been made of cursed clay. तो ये पाप उपजाती है, अपने आप उपजाती है, इसका स्वभाव है। Automatically produces sin, that's its nature. हाँ, और इसमें पाप पलते हैं, Sin बढ़ते grows हैं in और it फैलते हैं। and multiplies in it. हाँ, हर धर्मी के जीवन के 2 पहलू होते हैं, माने या ना माने, उसके जीवन के 2 ऐसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं उसके जीवन में। Every righteous man has 2 parts of his life, like 2 sides of the same coin. चाहे अब्राहम हो, दाऊद हो, याकूब हो, एसाव हो, कोई भी हो दास। Everyone, Abraham, Isaac, Jacob, David, anyone, any man of God. पौल खुद कहता है, हाय मैं कैसा भागा पुरुष हूँ, जो नहीं चाहता वो कर जाता है। Even Paul says, what a wretched man I am, I hate what I do. That was the second part of his nature. हाँ, आपका एक पार्ट और है जो नहीं देखा गया, छुपा हुआ है कहीं पर। There is another part of your life which is hidden that no one can see. जो आप अपने विचारों में जीते हैं, कहीं आप चुप कर जी जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा दूसरा पहलू छुपा होता है। That which you live in your thoughts or you do secretly, that's another part of your life that's there. बाइबल कहता है हर एक ने पाप किया, अगर कोई कहे मेरे में पाप नहीं है, वो झूठा है। So if the Bible says for all have sinned, and if anyone says I have not sinned, he's a liar. आप धर्मी दिखाते रहो, उससे कुछ नहीं बात बनती होगी। You can keep on showing you're righteous, that makes no difference. अच्छा जी, देखिए, ऐसा नहीं था कि नूह ने पहली बार शराब बनाई हो, ऐसा नहीं है। अगर मत्ती 24:38 आप पढ़ेंगे, it was not the first time that Noah made liquor. If you read Matthew 24:38, पढ़िए। Matthew 24:38, जी भाई।
क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. हाँ, वो खाते पीते थे, शराब पहले से चली आ रही थी। They were eating and drinking. The liquor was continuing from beforehand. अब 8 आदमी रह गए थे पृथ्वी पर। Now there were 8 people upon the earth. पृथ्वी बहुत उपजाऊ थी क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर उसमें थे, इतनी लाशें थी, इतना जानवर थे, इतने पेड़ पौधे थे, बहुत उपजाऊ भूमि थी। The earth was very, very fertile because there were so many bodies that were buried into the earth. There was such a lot of fertility because of all that. वो थोड़ा बोता था और बहुत बहुत ज्यादा काट लेता था। And a little that Noah sowed, he used to get a plentiful. अब प्रचार करने को कुछ था नहीं, 8 आदमी थे। Now there were 8 people, nothing left to preach. हाँ, और भाई जी खाने को बहुत आया था, Abundant to eat. मैं सोचता हूँ पहले सबसे बड़ी गलती की उसने दाख बोनी शुरू की, क्योंकि टाइम था, कुछ टेस्ट की वजह से हुआ, उसने सोचा अंगूरी खा लेंगे और ये शुरुआत हुई वहां से। That's the first mistake he made, that he started by planting wine because of good of taste. So he began by planting that. That's the first mistake he made. हाँ, उसने कहा बेल में लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। Oh, what's the harm in having a wine? जब हमारे जीवन में पाप शुरू होता है तो एक क्लिक से होता है, एक छोटी साइड से होता है, धीरे 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 धीरे। When sin begins in our life, it begins with a small click. It begins with a single sight. हाँ, और वो जानता था ये पाप है, पूरी उम्र उसने इसका प्रचार किया कि ये पाप है, ये पाप है। और अचानक शैतान ने उसी पाप में जिसका वो प्रचार करता था खुद फंस गया। He preached that of all his life, 120 years he preached that, but he caught up. Satan trapped him in the same sin that he preached against. हाँ, 120 साल प्रचार करता रहा। He was preaching that 120 years. बुढ़ापे में आकर 9 से 50 साल की उम्र में आकर फिर वहीं गिर गया। And coming close to the very end of his life, 950 years, he fell in the same sin he preached against. एक अभिलाषा थी अंगूर की, और वो अभिलाषा गर्भवती होकर उसने पाप को जन्म दिया और पाप फिर उसके यहाँ श्राप ले आई। One desire for the wine that sin conceived, and the sin brought forth death. फिर एक बार हमने गलत कदम रखा, फिर हमारे पास अपने आप को रोकने की सामर्थ्य नहीं बचती। Once you take a step in the wrong direction, then you will not have much strength to hold yourself back. ये अपने तंबू में था, He was in his tent. मुझे नहीं मालूम उसकी पत्नी भी होगी वहां पर। His wife must have also been there. और शायद इनमें सहमति हो सकती है दोनों में। And there must have been some agreement between the both of them. और हर पाप नंगा कर देता है। Every sin makes you naked. हाँ, देखिए एक बात, हाम भी वो दूसरों के पाप देखने में बड़ा उत्सुक था, बिना चौंकाए बिना चिताए अपने बाप के तंबू में झांका उसने। And Ham was very curious to know the sin of other people. Without asking, he entered into the tent of his father. दूसरों के पाप को झांकने की आदत थी। The desire to see the sin of other people. फिर उस पाप को फैलाने की आदत थी। And then the desire to spread about that sin. मगर ये नहीं पता उस पाप को फैलाने से मैं खुद पापी होकर शापित हो रहा हूँ। But don't realize that by spreading that sin, I am myself sinning, and I'm bringing curse on myself. हम आदत है हमारे अंदर दूसरों के पाप झांकने की। This is our nature, to look into the sin of other people. हम जासूसी में लगे रहते हैं। We keep on spying. हाँ, कोई हमें अगर सुना दे किसी की पाप तो बड़े कान लगा के सुनते हैं। Oh, if somebody tells you somebody else's sin, we listen with open ears. और भजन 15 में कहता है वो व्यक्ति धन्य है जो सुनता ही नहीं, क्योंकि भाई तुम मुझसे मत कहिए बात। And Psalm 15 says, "Blessed is the man who does not hear about the sin of other people." हाँ, वो नहीं सुनता, सुनना ही मैं He does not listen. No, don't talk to me about all this. जिसने सुन लिया उसने अपने मन में बोल लिया। The one who hears has planted that seed in his heart.
क्योंकि तू मुझसे क्या ही मत जा जो है। Don't tell me, don't tell me at all. फिर दोबारा आप कहने की हिम्मत नहीं पड़नी उसकी। Then he will not have the courage to say the thing again. आप मत देखो आपके रिश्ते बिगड़ते हैं नहीं बिगड़ते, Don't worry whether your relationships get spoiled or not. वो तो इसलिए आया है कि आपका परमेश्वर से रिश्ता बिगाड़ दे। He has come to spoil your relationship with God. आप मत सुनो बुराई। Don't listen to evil. अगर आप भजन पढ़ेंगे, वो भजन बताएगा आपको क्या, किस तरह आप परमेश्वर के तंबू में बसे रह सकते हो। नहीं तो तंबू में बहने लायक नहीं हो परमेश्वर के। अभी मैं तंबू के बारे में बताऊंगा। Psalm 15 will tell you how you can dwell in the tabernacle of the Most High. Otherwise, you're not worthy to dwell in that tent. तो आज हम यही लगे हैं, हम दूसरों को नंगा करने में, उनको नंगापन देखने में लगे हैं। Today we are in the always ready to see the nakedness of other people and to make them naked. पहले शेम आया, वहां लिखा है, और शेम ने अपने भाई यपेत से कहा, चल हम अपने बाप का नंगापन ढांप देंगे। First, Shem came, says to his brother Japheth, "Come, let's hide the nakedness of our father." हाँ, और उन्होंने चद्दर ली, उल्टे चले, अपने बाप की तरफ नहीं देखा और उसके नंगेपन को ढांप दिया। They took a sheet, went in the reverse direction, covered the nakedness of their father. जो दूसरों के पाप ढांपते हैं, प्रभु उनके पाप ढांप देता है। He who covers the sin of other people, the Lord covers his sins also. जो दूसरों के माफ कर देते हैं, प्रभु उनके माफ कर देता है। The ones who forgive the sins of other people, the Lord forgives their sins also. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभु ने इन लोगों को ये मन दिया था कि ये पाप ढांप दें। The Lord gave such a heart to these men to cover sin. प्रभु का वचन आता है ना, तो वो हमें जगाता है। When the word of God comes, it wakes us up. हर विश्वासी को जो पाप कर जाता है, उसे जगाता है एक बार। Wakes every believer who has sinned. हाँ, तेरे मन में विरोध भरा पड़ा है किसी के लिए, तू किसी आदमी को नंगा करता है बुराई कर करके। Bitterness in your heart, you would make other people naked by speaking evil about them. हर एक के पास प्रकाश लाता है धर्मी आदमी पर और उसे जगाता है। The word of God brings light to every righteous man, wakes him up. हाँ, इसके टाइम भी आया, इसके नूह के टाइम में सुबह आई, उसे जगाया, इसे दिखाया कि देख ये हो गया। Even in the time of Noah, it came, woke him up in the morning and told Noah, see what has happened. मगर इसने अपने को नहीं देखा, अपने बेटे को देखा, उसने क्या किया, ये नहीं देखा कि मैंने क्या किया। But Noah did not see what I have done, he rather saw what his son had done. हाँ, उसने नहीं देखा। He did not see that. प्रभु ने इसलिए दिखाया था कि तू अपने को देख। God had shown Noah's sin to you see yourself. आदम ने अपने आप को नहीं देखा, वो किसे देखा रहा Adam था? did not see himself, but who? कि हवा ने क्या किया। What Eve has done. हाँ, नूह ने क्या, अपने को नहीं देखा, बल्कि हवा उसे दिखाया, अपने बेटे को देखा। Noah didn't see himself, but saw his son Ham. हाँ, फिर यदि हम अपने आप को पाप मान लेते तो प्रभु पाप के श्राप से हमें बाहर निकाल खड़ा। If we confess our sins, the Lord brings us out of the curse of sin. आदम को निकाल कर खड़ा कर देता, Made Adam to stand outside. नूह को खड़ा कर देता। Even Noah. मगर इन्होंने अपने बेटे के पाप को देखा, उसने अपनी पत्नी के पाप को देखा, अपने पाप को नहीं देखा। He saw his son's sins. Yes, Adam saw his wife's sin, but not their own sin. तो प्रभु क्या उसको इसलिए जगाया था, इसलिए उसके पास आया था कि उसकी बीवी के पाप दिखाए? Had the Lord woken him up so as to show the sins of his wife? हाँ, प्रियो परमेश्वर, एक अब आगे हम चलते थोड़ा सा। When we go forward, हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रभु ने उसे क्या नाम है, हाम को श्राप दिया। the Lord cursed नहीं, Ham. हाँ, प्रभु ने नहीं, प्रभु ने नहीं, प्रभु Noah ने श्राप cursed दिया। Ham. नूह ने श्राप दिया। Noah cursed Ham. हाँ, एक ध्यान से सुनिए, यहाँ भेद है, बड़ा भारी भेद है। Now there's a mystery here. परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, God did not curse him क्योंकि परमेश्वर तो आशीष दे चुका था तीनों because बेटों the को, Lord had already blessed all of the three sons और उसे भी श्राप आशीष दे चुका था। and had given him also a blessing.
हम बलाम की कहानी में देखते हैं, उसने कहा मैं याकूब को आशीष दे सका, वो मैं क्यों शाप दे सकता हूँ, दे नहीं In सकता। the story of Balaam, we read, he says, I have blessed Israel, how can I curse him? हाँ, प्रभु ने आदम को शाप नहीं दिया, कहा आदम के कारण पृथ्वी शापित है, वो The तेरे Lord did not curse Adam. The Lord said, cursed is the earth because of you. आदम को शाप नहीं दिया उसने, Did not curse Adam क्योंकि उसे आशीष दे चुका था, because he'd already been given a blessing. उसके कारण पृथ्वी को शापित किया, But because of him, the earth was cursed. वो तेरे लिए परेशानी उत्पन्न करेगी। That earth will create problems for you. तो प्रभु ने नहीं शापित किया। अब देखिए इसके नूह ने Now कैसे किया। Noah, how did he live? हाँ, उसने हाम को शापित नहीं कर सकता था, He could not have cursed Ham, उसके बेटे कनान को शापित किया। but rather cursed his son Canaan. हाँ, देखिए उसने कनान का नाम लिया, उसके बेटे का नाम लिया, He उसका नाम took- लिया क्योंकि वो आशीषित कर चुका था। He did not take the name of Ham, but the name of his son Canaan, because Ham had already been blessed by the Lord. हाँ, संतों के शब्दों में बड़ी सामर्थ होती है। There is great power in the words of the saints. हाँ, बहुत सामर्थ होती है। Great power. हाँ, और देखिए इसलिए हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। That is why we ought to speak with lot of care. जहां हमने अपनी जबान को बेलगाम किया, भाई जी वो अनर्थ कर जाएगा। Whenever we let our tongue loose, it will do great damage. देखिए यहोशू ने क्या किया, What did Joshua do? परमेश्वर ने यरो को शाप नहीं दिया था। The Lord had not cursed Jericho. यहोशू 6:26 जल्दी से पढ़ दो भाई। So if we quickly read Joshua 6:26, Joshua 6:26. यहोशू 6:26। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वे यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। At that time Joshua pronounced this solemn oath, cursed before the Lord is the one who undertakes to rebuild this city Jericho. At the cost of his firstborn son he will lay its foundations, and at the cost of his youngest he will set up its gates. 500 साल तक किसी ने हिम्मत नहीं की यरो को फिर बसा दे, 500 years, no one had the courage to inhabit Jericho. मगर शाप वहीं खड़ा था, But curse was still standing. शाप नहीं मरा था। Curse had not died. मगर 500 साल बाद पहला राजा 1634 में एक बेतेल वासी था, उसने वो शाप अपने बेटों पे, अपने पुत्र पे ले लिया। But after 500 years, there was a dweller of Bethel who took the curse on himself and his children. हिएल नाम था उसका। His name was Ahiel. हाँ, और जैसे ही उसने अपने ऊपर शाप लिया उसका, हाँ पढ़ And दीजिएगा, पहला the राजा moment- 1634, पहला राजा 1 Kings 16:34. 1 Kings 16:34. उसके दिनों में बेतेलवासी हीएल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसके फाटक खड़े की तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। और यहोवा के उस वचन के अनुसार यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। In Ahab's time, Hiel of Bethel rebuilt Jericho. He laid its foundations at the cost of his firstborn son Abiram, and he set up its gates at the cost of his youngest son Segub, in the accordance with the word of the Lord spoken by Joshua the son of Nun. हाँ, जैसे ही बेतेल वासी ने वो शाप अपने ऊपर लिया, वो शहर शाप मुक्त हो गया, फिर बसने लगा। The moment this man of Bethel took the curse upon himself, that it became without curse. हाँ, फिर बस गया, वो कुछ नहीं हुआ फिर। It was once again set up. There was nothing happened. हाँ, मगर ये बेतेल अलग है। बेतले जब बेतलेहम वासी ने हमारा सारा श्राप अपने ऊपर लिया, हम श्राप से मुक्त हो गए। When the one of Bethlehem took our curse on himself, we were set free from the curse. हाँ, अब ध्यान दें। देखिए
अगर 25 पद में देखते हैं तो उसने, अब पढ़िएगा 25 पद पढ़िए। So read Genesis 7:25. जेनेसिस 7:25 जी भाई। 9:25. Sorry, Genesis 9:25. इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। He हाँ। said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves will be he to his brothers." हाँ, देखिए पृथ्वी पर 3 वंश थे और एक श्रापित वंश की लाइन खड़ी हो गई है। There were 3 generations on the earth, and one cursed generation stood up. हाम को शापित नहीं किया, कनान को, उसके पुत्र को आशीष किया। The Lord did not curse Ham, but his son Canaan. जिसे प्रभु आशीष देता है वो फिर शापित नहीं हो सकता। Sorry, Noah did not curse Ham, but Noah cursed Canaan, whom the Lord has blessed. Thou shalt not call cursed. हाँ, वो कहता है, गिनती किताब 23 और 8 में कहता है, मैं आशीष दे चुका हूँ, पढ़िएगा मत, टाइम नहीं है हमारे पास, वो फिर बदलता नहीं उससे। And Numbers 23:8, he says, once I have blessed, I will not change it. जो उसके लहू से आशीषित हो गए वो फिर शापित नहीं हो सकते। The ones who've been blessed by his blood can never be cursed. मैंने अब शेम पर आई है, उसके बड़े बेटे। Now let's come to his elder son Shem. हाँ, शेम में वो नाम है जो उसका उद्धार है, छुटकारा, शाप से बाहर निकालने की सामर्थ्य है उसके। Shem has the name which is the name of deliverance and the power to be delivered from the curse. हाँ, और वो ही जो है वो शाप से निकालकर आशीष से मेल मिलाप करा देता है। He is the one to bring out of the curse and make a reconciliation with blessing. हाँ, इसी के वंश में एक नाम छिपा है जो सब नामों से उत्तम नाम है और जिसके नाम में छुटकारा है। In his generation is written the name which is above all names, and in that name is deliverance. हाँ, अब जरा आगे पढ़िए थोड़ा सा। Now if you read further, 26 और 27 पढ़िए। फिर if you उसने read कहा, ध्यान से पढ़िए। 27, फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। आगे पढ़िए 27 में है। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वे शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। सुनिए, ध्यान से सुनिए। Now hear carefully. यपेत किसके तंबू में बसे? अपने में नहीं। Where will Japheth dwell? Not in his own किसके tent, तंबू में बसे? Who in whose tent? नूह के तंबू में श्राप था। There was curse in the tent of वहां से Noah. वो श्राप लेकर आया। He brought curse from there. मगर हम शेम के तंबू में जाते हैं। But we go into the tents of Shem. हाँ, जहां हमारे सारे श्राप को आशीष में बदल देता है प्रभु। Where all our curse is turned into a blessing. और यही यपेत का तंबू सारी दुनिया में यपेत के लोग वंश जो है सारी पृथ्वी पर फैल रहा है। And this generation of Japheth spread all over the earth. हाँ, शेम के तंबू में श्राप नहीं है। There is no curse in the tents of Shem. आज आप शेम के तंबू में बैठे हैं। Today you are sitting in the tent of Shem. आप शेम के तंबू में आकर श्रापित थे, आशीष में बदल गए। That those who came in the tents of Shem, their curse turned into a blessing. यहाँ स्वर्गीय प्रकाश आता है। Where there is divine revelation. ये तंबू एक जगह नहीं टिकेगा, ये उठाए जाने वाला है तंबू। This tent is not going to abide in one place, it's going to be इस lifted up. तंबू में स्वर्गीय प्रकाश है। There is heavenly light in this tent. इस तंबू में वो सामर्थ्य है जो पाप को आशीष में बदल देती है। This tent has the power to turn curse into blessing. हाँ, देखिए, हम अपने बच्चों के भी परिवार के मन में पाप बोते हैं। We sow sin in the lives of our children. जब हम बुराई करते हैं, जलन विरोध की बात करते हैं, तब बोते हैं। When we do evil, bitterness, envy, jealousy, and talk about it, we sow it in their heart. हम उनके कच्चे मन में धर्म को बो देते, धर्म को in their innocent, childish heart, we sow religion. और वो धर्म बलता है, पड़ता है, फलता है और then it multiplies and grows strong in them. और वो आदमी को भयानक अधर्मी बना देता है and makes that man totally unreligious. तो ये कनान के जो वंशीय जो है, ये मोलेक के पुजारी हैं। मोलेक
एक देवता है। They who are the children of Canaan are the worshippers of Molech. ये अपने पाप के छुटकारे के लिए अपने बेटों को बलि चढ़ाते थे। They are to be delivered from sin. They would sacrifice their own children. हाँ, ये सोचते थे कि ये हमें श्राप से अलग कर देगा। They हमारे thought बेटों this का will. They thought that our child will deliver us from the curse of sin. वो शेम यानी परमेश्वर के पुत्र के बलिदान पर उनका विश्वास नहीं था कि वो They छुटकारा। did not believe in the sacrifice of the only begotten Son of God, that in Him is deliverance. तो ये कनान जो है एक लाइन बना रहा, सीड लाइन, जो मसीह विरोधी लाइन है। So Canaan is making a seed line of the Antichrist. हाँ, और प्रियो ये अपने पुत्रों को भी उसी श्राप की लाइन में खड़ा कर रहे हैं। And dear ones, they are making their generation also to land. सॉरी, stand कनान Canaan is making his generation to stand in the line of a curse. हाँ, ये अब क्या होता है, एक बात ध्यान दीजिए, मैं खत्म करने में हूँ, टाइम होगा। Now what happens? हाँ, देखिए, परमेश्वर का कोई जन छिपे पाप, विरोध या व्यभिचार से बार बार हार जाता है। No man, every believer is defeated. नहीं, by एवरी कोई anyone in the world is defeated by sin, lust, adultery, pride, jealousy. विश्वासी भी बता रहा हूँ, Even believers वो बार बार हार जाता है। defeated again and again. तो उसका विवेक धीरे धीरे उसे कचोटना बंद कर देता है। Then bit by bit his conscience stops prodding him, stops convicting him. हाँ, जो भी विश्वासी भी अगर पाप में लगातार बना रहेगा, आखिर उसका विवेक मर जाएगा। Even if the believer is involved with such sin, his conscience will die. हाँ, फिर नहीं उसे को कचोटेगी कुछ दिन। Then the conscience will not convict him. और हम सोच लेंगे यार मजबूरी है, हम पाप से नहीं छूट सकते। And we think it's a compulsion. No one can deliver us from sin. और फिर हम मक्कारी में आकर खड़े हो जाएंगे। And then we come and stand in hypocrisy. जो आराधना मन से नहीं मक्कारी से चढ़ाई जाती है, वो आराधना का अपमान होता है। That worship which is not from the heart but from hypocrisy within you dishonors worship. हाँ, मगर आज प्रभु आपको अपने तंबू में लाया है ताकि स्वर्गीय प्रकाश को दिखाई दे। But today the Lord has brought you into His tent so that He may see you a divine revelation, divine light. जिसमें आप अपने और मेरे, हम अपने छिपे पापों को देख सकें। In the light that you can see your hidden sins. यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा हमें मजबूर करती है। Here the Spirit of God compels us. जब हमारे पास मेज और प्याला आता है, वो हमें कंपेल करती है कि हम अपने Whenever पापों we को मान get लें। the bread and the cup, it compels us. हाँ, ताकि हम माफी मांग लें। That we ask forgiveness. हाँ, देखिए, बाइबल बताती है हम अपने पापों के कारण आशीष के योग्य नहीं है। The Bible says because of our sins we are not worthy of blessing. हम शापित वंश में पैदा हुए हैं। We were born in the cursed generation. हाँ, मगर इस तंबू में है वो सामर्थ है कि यहाँ पर वो है। But this tent has got that great power because in this tent is the one जो हमारे सारे श्राप को आशीष में बदल देती है। who can turn all my curse into a blessing. मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कई धर्मी जनों ने श्रापित बच्चों को पैदा किया। Many righteous men have given birth to a cursed generation of children. हाँ, और उन्होंने कनान की लाइन में खड़ा कर दिया and made them stand in the line of Canaan. अब्राहम ने इस्माइल को खड़ा कर दिया। Abraham gave birth to Ishmael. दाऊद ने अब्शलोम को खड़ा कर दिया। David gave birth to Absalom. नूह ने कनान को खड़ा कर दिया। Noah made Canaan to stand up. फिर आप अपने बच्चों को कहाँ खड़ा कर रहे हो? अगर आपके अंदर जलन, विरोध और किसी को नंगा देखने और नंगा करने की आदत है तो where are you making your children to stand? If you have a habit of making other people naked and talking about their nakedness even to your own children, आप शापित वंश की लाइन में अपने बच्चों को, अपने परिवार को खड़ा कर रहे हो। you are making your family, your children stand in line of a curse. नूह ने यही किया। This is what Noah did.
हाँ, मगर कई बुरे लोगों के बच्चे जो थे वो लाइन को तोड़कर आशीष की लाइन में खड़े। But many of the children of this cursed generation broke the line to stand in the line of blessing. आजा जो था वो बहुत पापी था, उसके बेटे ने वो शाप की लाइन को तोड़कर आशीष की लाइन में खड़ा हो गया। Asa was a terrible sinful king, but his son broke the chain, broke the line, and stood in the line of blessing. हाँ, प्रियो उसके तंबू में वो है, पढ़िए व्यवस्था विवरण 23 और 5। If you can read Deuteronomy 23:5, what is there in his tent? Deuteronomy 23:5. परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। However, the Lord your God would not listen to Balaam, but turned the curse into a blessing for you, because the Lord your God loves you. प्रभु आपको अपने तंबू में लाया है। The Lord has brought you in his tent. प्रियो, अगर यदि हम अपने पाप को मान लेते हैं, If we acknowledge our sin, हाँ, अपने हर एक ऐसी छुपी विरोध को, जलन को, दूसरे के नंगेपन देखने को, दूसरों को नंगा करने की आदत से बंधे हुए हैं। many they are tied up with this habit of exposing the sins of other people and telling about those sins to other people. हाँ, इस बुराई से बंधे हैं। They are bound with this evil. तो प्रभु कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है इस प्याले में सम्मिलित होने से पहले। And the Lord is compelling you before you take part in the cup. हाँ, ताकि आप पश्चाताप करें। वो आपके लिए आशीष का प्याला लेके खड़ा है। So that you may repent. He is standing in front of you with a cup of blessing. हाँ, अगर आप फिर भी नून को दिखाया, अगर नून ने अपने पाप नहीं देखे, अपने बेटे के पाप देखे। It was shown to Noah, but Noah did not see his own sins. He saw the wickedness of his son in the instead. हाँ, और प्रियो पाप नंगा कर देता, पर प्रभु यीशु मसीह पाप के कारण नंगा हुआ, मेरे पाप के कारण। And sin makes us naked. The Lord Jesus was made naked because of your sins and my sins. अगर आप अपना नंगापन छिपाने के लिए दूसरों को नंगा कर रहे हो, तो फिर सोच लो। If you are trying to hide your nakedness by showing the nakedness of other people, प्रियो अगर इस मक्कारी से आपने अपने हाथ बढ़ाए साथ, if you spread your hands towards the Lord's table with this hypocrisy, तो फिर आप सोच लो। then think of it, think of the consequences. आज तो उसके हाथ में आपके लिए आशीष का प्याला है। Today he has a cup of blessing in his hands for you. मगर उसके हाथ में अगर आप पड़े तो एक भयानक बात है। But it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. प्रियो जब आप किसी की बुराई करते हो, आप किसी को नंगा कर रहे हो। When you speak evil against somebody, you are making that person naked. तू कौन है जो उसका हिसाब किताब लेने वाला है? कौन? Who are you to take account of another man's servant? The Bible says. रोमियो 2:2 में कहता है, Says in Romans 2:2, who are you to judge another? मैं तुझे इतने दिन से सह रहा हूं, तू क्या मेरी सहनशीलता को तुच्छ जानता है? I am suffering you for so many days. You count my long suffering worthless. हाँ, रोमियो 2 और 4 में कहता है, तू उसकी सहनशीलता को तुच्छ जानता है? Do you consider his long suffering worthless? ये तो तुझे मौका है, समय है मन फिराने का, तुझे फिर से श्राप से आशीष में आने का। You have the opportunity to once again come back from curse into blessing. आदम को वो आशीष देने आया था फिर, मगर वो अपने पाप ही नहीं उसे दिखा रहा, वो पत्नी के पाप देखता रहा। Adam, Lord came to show him his sins, but he's not seeing his own. He's showing him his wife's sin. हर परमेश्वर के जन को एक दिन दाता उसका पाप दिखाता, नूह को दिखाया उसका पाप। Every day once it comes, Noah, his sin was revealed to him. हाँ, उसने अपने बेटे के पाप देखे, अपने नहीं देखे। He saw his children sin, his own son sin, not his own. हाँ, और अपनी संतान को शापित कर लिया। And cursed his own generation, his own child. आदम ने पाप किया, पाप छिपाया और शापित हुआ। Adam sinned, hid the sin, and curse came on the land. शापित संतान को जन्म दिया। Gave birth to a cursed generation.
हाँ, और नूह ने पाप किया, पाप छिपाया और अपनी संतान को श्राप देकर गया। Noah committed sin, covered his own sin, and his generation of one seed line was cursed. जिसके विरोध पाप करता रहा, खुद उस पाप में गिर गया। The same thing he preached against all his life, he fell in the same sin. इसलिए कुरिन्थियों में कहता है कि जो स्थिर है वो अपने आप को, वो क्या है दूसरा कुरिन्थियों, That is, he says in 1 Corinthians 10:12. Please read. हाँ, 10 Corinthians 12 में 10:12. हाँ, 10 12। यस भाई 10-12। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वे चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, So if you think you are standing firm, be careful that you do not fall. हाँ, आपकी लापरवाही और दूसरों को नंगा करने और नंगा देखने की आदत बहुत बुराई में। So, carelessness about your own sin and your desire to expose the sins of others and to talk about their nakedness to others will bring you in destruction. आपको उस तंबू में लाया है जहाँ उसने आपके लिए आशीष का प्याला रखा The है। Lord has brought you into the tent where you have the cup of blessing. यहाँ पर वो परमेश्वर है जो आपके सारे श्राप को आशीष में बदल सकता है। Here is that God that can turn all your curse into a blessing. कहीं अभी भी बुराई देखने की आदत से बंधे तो नहीं हूं मैं? Are you still bound with the desire to see evil? दूसरों की बुराई बताने और दिखाने से रुकता हूं या Do I hold myself? प्रभु दया करे मुझ पर, प्रभु दया करे मुझ पर। भाई चानी आपका माइक बंद है, शायद आवाज नहीं आ रही। मेरा कोटक महिंद्रा बैंक जानी भाई माइक ऑन कर लीजिए। कैसे कर दोगे? नहीं आ रही भाई, आपके पास नहीं है। चलिए, तो प्रभु करे कि हम इस प्याले में जाने से पहले, जब प्रभु ने कहीं हम दूसरों पर नंगा करने और नंगा देखने की आदत है, तो प्रभु उससे बाहर निकाले और तब हम इस मेज की तरफ हाथ बढ़ाएं। तो सचमुच में प्रभु ये प्याला वास्तविक में हमारे लिए आशीष का कारण या आशीष का प्याला बने। विद्या भाई आप कर दो। Hello? Hello? हाँ हाँ जी भाई. तो आइए हम प्रभु के मेज में एक बार जांचते हुए जाएंगे। Come, let us take part in the Lord's table with true examination. हाँ, और प्रभु ने अगर कहीं बात की है, And if the Lord has spoken to you, हाँ, वो कनान जो था, कनान का बाप जो था, वो अपने बाप की चुपके से जासूसी करने गया था। Canaan had gone to secretly spy out his father's sin. उसने अपने बाप को नंगा देखा और उसके नंगेपन का बखान किया। He saw his father naked and he talked about his father's nakedness to others. हाँ, और शापित हो गया and became cursed. और उसके दोनों बेटों ने पाप को ढांप दिया। His two sons covered his sin वो आशीष में खड़े हो गए। and they came into blessing. अगर प्रभु ने मेरे से आपसे बात की है, If the Lord has spoken to you and me, और प्रभु के तंबू में आज परमेश्वर का प्रेम मुझे मजबूर करता है कि मैं अपने आप को जांच लूं, and in the Lord's tent the love of Christ constrains me to examine myself, तो प्रभु हमारे लिए आशीष का प्याला लेकर खड़ा है। then the Lord is standing with us, for us with a cup of blessing. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray.